This video contains exercise questions of Chapter 5, Class 4, Food and Digestion. If you haven't seen the explanation of this chapter, links are given in the description box. And if you are new to my channel, do consider subscribing it and press the bell icon for latest updates. Also, you can follow me on my Facebook page where I upload few amazing science activities and lot more. The links are given in the description box. So, without further ado, let's start with today's class. Section A, choose the correct answer. First question. The essential substances present in food that nourish the body are called. जो essential substance हमारे food में present होते हैं जो कि हमारे body के लिए बहुत ज़्यादा important है उसको क्या कहते हैं? Those are called nutrients. Option B is the correct answer. Question number 2. Rice, wheat, maize and potato are rich source of Option A, carbohydrates. They contains much of carbohydrates. So they are rich sources of carbohydrates. Okay. Next, question number 3. The food group rich in protein. Among these 4 food groups, which food group is rich in protein? They have asked. So option C, pulses, peas and eggs. इन सब में बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है. Okay, moving on to question number 4. The fiber content of the food is called roughage. Option D is the correct answer. Next, question number 5. Wafers, pizza and burgers are example of. Wafer, pizza, burger ये सब जो है ये सब किस चीज़ों के किन चीज़ों के एग्जाम्पल है किस टाइप के फूड का एग्जाम्पल है तो आंसर इज junk food. These all are example of junk food. Okay. Now moving on to our next section, that is give short answers. In that, question number 1 says name the nutrients of a balanced diet. हमें एक balanced diet में क्या क्या nutrients present होते हैं उनको mention करना है. So answer, nutrients present in a balanced diet क्या क्या है? Carbohydrates, proteins, fats, vitamins and roughage and water. These are the nutrients present in our balanced diet. Okay. Next, how can you preserve food? हम खाने को कैसे preserve कर सकते हैं? ठीक है. Answer, freeze it as in ice cream or custard. Then can it be canned or tinned food? It can be preserved as a tinned food. Next, salt it as in pickles, sweeten it as in jam, jelly and chutney. Next, oil it as in pickles and finally dehydrate it, that is remove water by drying the food. These all are the ways how we can preserve the food. Okay. Next, question number 3. Why is water important for our body? तो हमें सबको पता है कि वाटर जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. बट वाई? दिस इज बिकॉज वाटर helps to maintain our body temperature and is part of digestive juices. वाटर क्या करता है? हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने में हमारी मदद करता है और साथ ही हमारा जो खाना डाइजेशन है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें जितनी भी जूसेस सिक्रीट होती है उसका जो मेजर पार्ट है, मेजर रोल है वो वाटर का है. ठीक है. सो दिस इज वाई वाटर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर अवर बॉडी. क्लियर? Moving on, question number 4. Moving on to question number 4, which says, why should we not throw the water in which pulses are soaked? हम जिस वाटर में पल्सेस को सोक कर रहे हैं उस वाटर को क्यों नहीं फेंकना चाहिए? This is because the water in which pulses are soaked contains nutrients. So it should not be thrown away. It should be used in
कुकिंग, क्योंकि जिस वाटर में हम पल्सेस को सोक कर रहे हैं वो वाटर बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, उसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स होता है, इसलिए उसको नहीं फेंक के उसको कुकिंग में यूज़ करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कुकिंग द फूड? कुक करने का क्या क्या एडवांटेज है? ठीक है, दैट इज कुकिंग मेक्स द फूड टेस्टी, सॉफ्ट एंड ईजी टू डाइजेस्ट। इट ऑल्सो किल्स जर्म्स। तो कुकिंग से क्या होता है, फूड ज़्यादा टेस्टी होता है, सॉफ्ट होता है और डाइजेशन में भी बहुत ईजी होता है। ऑल्सो कुक करने से जो फूड में जर्म्स प्रेजेंट होंगे वो उस वार्म टेम्परेचर में नहीं रेजिस्ट कर पाएंगे, इसीलिए वो मर जाएंगे। इसीलिए कुकिंग करने से वो हम जर्म्स को भी किल कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ आर प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स यूजफुल? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लिए यूजफुल कैसे हैं? तो पहले कार्बोहाइड्रेट्स का देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स गिव अस एनर्जी टू डू वर्क। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है काम करने के लिए। अब प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन हेल्प्स इन बॉडी बिल्डिंग, इट हेल्प्स इन ग्रोथ, ऑल्सो हेल्प्स इन द रिपेयर ऑफ वोर्न आउट सेल। तो प्रोटीन हमारा बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है, हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है। ऑल्सो जब हमारा कोई सेल डैमेज हो जाता है, जब हमें चोट लगती है तो वहाँ के जो सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, तो उन सेल्स को दोबारा से रिपेयर करने की जो जिम्मेदारी है दैट इज ऑल ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, सो दिस इज हाउ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर यूजफुल फॉर अस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो यहाँ पे हमें पूरा बताना है दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर एक्सप्लेनेशन वीडियोस कि कैसे पूरा डाइजेशन पार्ट करता है, अपना अपना रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले जो डाइजेशन है दैट स्टार्ट्स इन आवर माउथ, जहाँ पे टीथ ब्रेक्स सॉलिड फूड इनटू सिंपलर और स्मॉलर पीसेस। उसके बाद वो जाके सलाइवा से मिक्स्ड हो जाता है, जो कि हेल्प करता है ब्रेकिंग द स्टार्च इनटू शुगर। नेक्स्ट क्या होता है, अब जो फूड है दैट गोज थ्रू द फूड पाइप दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ओसोफेगस एंड पास टू द स्टमक, वो स्टमक तक पास हो जाता है। स्टमक क्या करता है, अपनी मूवमेंट की हेल्प से उसको और छोटे छोटे सिंपलर पीसेस में डिवाइड कर देता है। ठीक है, कैसे? बाय एडिंग जूसेस एंड देन इट पासेस इनटू इंटेस्टाइन। अब जो प्रोटीन है वो डाइजेस्ट हो जाता है स्टमक में ही। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब जो फंक्शन है दैट इज ऑफ इंटेस्टाइन। जो लिवर और पेनक्रियाज हैं वो क्या करते हैं, अपने जो जूसेस है वो इंटेस्टाइन में सिक्रीट करते हैं, जो कि कंप्लीट डाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स में हेल्प करता है। नाउ व्हाट डज लिवर सिक्रीट्स? लिवर सिक्रीट्स बाइल जूस, जो कि क्या डाइजेस्ट करता है, दैट डाइजेस्ट फैट। नेक्स्ट द सिंपलर फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज मिक्स्ड विद द ब्लड। अब जो एकदम सिंपलर फॉर्म हमें मिल चुका है न्यूट्रिएंट्स का वो जाके ब्लड में ऐड हो जाएगा, और जो हमारा अनडाइजेस्टेड खाना रह गया है दैट विल मूव इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, और द वॉल्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स द एक्स्ट्रा वाटर एंड carry it to the kidney. The semi-solid waste is thrown out from the anus. तो जो हमारा एक्स्ट्रा वाटर है वो जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन अपने वॉल्स में एब्जॉर्ब कर लेगा और उसको किडनी तक पहुंचा देगा, और फिर सेमी सॉलिड वेस्ट जो है हमारी बॉडी से एनस के थ्रू थ्रोन आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन रफेज, व्हाई शुड इट बी इंक्लूडेड इन द डाइट? तो रफेज क्या है और उसको क्यों डाइट में इंक्लूड करना चाहिए? तो रफेज इज अ डाइटरी फाइबर प्रेजेंट इन अवर फूड। रफेज जो है वो एक डाइटरी फाइबर है जो कि हमारे खाने में प्रेजेंट है। अब रफेज को क्यों इंक्लूड करना चाहिए? रफेज आर इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड. They are not digested with the food, but they help in its digestion and removal of waste. तो रफेज जो है वो हमारे प्रॉपर डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रफेज खुद डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन वो
फूड को डाइजेस्ट करने में और वेस्ट को रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, इसीलिए उसको हमारे डाइट में रखना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट 4 बेस्ट वेज फॉर इजी डाइजेशन। हमें 4 बेस्ट वेज मेंशन करने हैं फॉर इजी डाइजेशन। ठीक है, आई हैव मेंशनड 6 हियर, यू जस्ट हैव टू मेंशन 4. Okay, any 4 out of these 6. Okay, so take food at regular interval. Do not swallow without chewing. Chew the food properly, it will help in digestion. Have a balanced diet. Drink plenty of water. Include roughage and fruits in the diet. तो क्या क्या है? पहले तो हमें खाना हमेशा रेगुलर इंटरवल में खाना चाहिए और खाना हमेशा अच्छे से चबा के खाना चाहिए। चबाने से क्या होता है, वो डाइजेशन में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है। और हमें बैलेंस डाइट खाना चाहिए और बहुत सारा पानी पीना चाहिए। साथ ही हमें अपने खाने में रफेज और फ्रूट को इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, सो हियर आई हैव मेंशन, एज यू कैन सी, 6 बेस्ट वेज फॉर डाइजेशन. You just have to write 4. You can just take any. Next is section D. Give reason for the following. In that, question number 1, vegetables and fruits should be washed before cutting. Vegetables और fruits को पहले धो लेना चाहिए, उसके बाद कट करना चाहिए. Why is this so? Vegetables and fruits should be washed before cutting them, as washing after cutting removes some of the vitamins and minerals. This is because क्योंकि अगर हम काटने के बाद उसको वॉश करते हैं तो उसमें से कुछ विटामिन्स और मिनरल्स भी रिमूव हो जाते हैं, इसीलिए हमेशा काटने से पहले वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को धो लेने चाहिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जंक फूड इज नॉट न्यूट्रिशियस. जंक फूड जो है वो न्यूट्रिशियस नहीं है. वाई? Answer, junk food do not provide essential nutrients and taking too much junk food can make us put on weight. Thus, junk food is not nutritious. अब जंक फूड जो है वो हमें एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए वो प्रोवाइड नहीं करते, बल्कि अगर हम ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं तो हमारा वेट पुट ऑन हो सकता है, इसीलिए जंक फूड जो है वो न्यूट्रिशियस नहीं है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फूड इज इम्पॉर्टेंट फॉर लिविंग बींग्स. जो खाना है वो सभी लिविंग बींग्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये हमें पता है. वाई इज दिस सो? पूछा है कि हमें रीजन बताना है. आंसर, फूड इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बींग्स एज फूड गिव्स देम एनर्जी टू डू वर्क. इट कीप्स देम हेल्दी. इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम डिजीजेस. तो फूड जो है वो लिविंग बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज वो एनर्जी देता है काम करने के लिए, उसको हेल्दी बनाए रखता है और डिजीजेस से भी प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए फूड हर एक लिविंग बींग के लिए बहुत ज़रूरी है. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर. In our next video, we will discuss another chapter. Till then, stay tuned and thank you.